ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے بھی ہیں اور ہم سنتے بھی ہیں. ایک جملہ ہے جس کو ہم کہتے بھی ہیں اور بولیے سنتے بھی ہیں. با ادب با نصیب. با ادب. اور ایک جملہ کیا ہے؟ بے ادب. کیا ہے وہ؟ بے ادب. بے ادب بے نصیب. یہ اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اور مستورات جہاں بیٹھی ہے وہ بھی مدرسہ ہے، اور ساتھ ساتھ مکتب بھی ہے، یعنی قرآن پاک سیکھنے کی جگہ. یعنی قرآن پاک سیکھنے کی جگہ. ایک آدمی کے پاس دولت بھی ہو اور سارے چیزیں ہو، لیکن ان کے پاس ادب نہیں ہے، تو اس آدمی کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو پھر اللہ رب العزت اس کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ رب العزت پھر کیسے اس کو پسند کریں گے؟ اس لیے یہ مسجد بھی ہے، مکتب بھی ہے، قرآن سیکھنے کی جگہ بھی ہے. تو ہمیں با ادب یہاں بیٹھنا ہے اور طلب کے ساتھ، یعنی دل میں قرآن سیکھنے کا طلب بھی ہو، دل میں قرآن پاک سیکھنے کا طلب بھی ہو. ہم طلب کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت قرآن کی دولت ہمیں عطا فرمائیں گے. اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ابھی ہم دعا پڑھائیں گے تو آپ بھی دعا پڑھیں گے. جو سوال کرو ہر ایک جواب دیں گے. ایسا نہیں کہ سامنے کا ایک دو لوگ جواب دے دیں، نہیں، ہر ایک ہم جواب دیں گے. یہ جلسہ نہیں ہے کہ جلسہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بولتے ہیں باقی سنتے ہیں. بعض لوگ ماشاءاللہ کہہ کے ایک آواز اٹھاتے ہیں. نہیں، یہ صرف کہنے سننے کا نہیں بلکہ یہ مجلس سیکھنے سکھانے کا ہے. اور یہاں ماشاءاللہ نہیں، ماشاءاللہ تو ہر حال میں ہے. ہر سوال کا ہمیں جواب دینا ہے. ایسا کریں گے. اور جو دعا ہم پڑھیں گے، اب جو میرے سامنے مرد ہے، مرد حضرت اونچی آواز سے پڑھیں گے. مستورات اونچی آواز سے، جو ہمارے ماں بہنیں ہیں وہ اونچی آواز سے نہیں پڑھے گی بلکہ پست ہلکی آواز سے پڑھے گی، بس پاس والی کو سنائی دے. ایسا کریں گے. اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمائے. چلیے اب ہم درس شروع کریں گے. ہم دعا پڑھیں گے، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان كلمة طيبة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله माना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه معنا نبي كريم صلى الله عليه वसल्लम का फरमान है तुम सब में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے، دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت سورہ یاسین تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ رب العزت سورہ یاسین تلاوت فرمائی۔ یاسین، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اللہ رب العزت کبھی اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکارے، یا محمد کبھی نہیں پکارے، یا احمد کبھی نہیں پکارے، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، یا ایھا المزمل، اے کملی والے، یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، مختلف ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا۔ جیسے ہم بھی اپنے بچوں کو پیار سے بلاتے، نام سے بہت کم بلاتے، پیارے بیٹے، اور علاقہ کے اعتبار سے کوئی چھوٹو، کوئی بولتے منا، اور پتہ نہیں کیا کیا، کوئی لڈو، کوئی برفی، کوئی مٹھائی۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ماں اور باپ اپنے بچوں کو ایک محبت کے نام سے، کوئی اپنے بچے کو طوطا کہہ کے پکارتے ہیں۔ جو چیز ان کو پسند ہے اسی چیز کو اپنے بیٹے سے بلاتے ہیں، اسی چیز کے نام سے اپنے بیٹے کو۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو محبت سے بلائے تھے، یا ایھا النبی، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، مختلف ناموں کے ساتھ بلائے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ جو واو ہے نا، یہ قسم کے لیے آتا ہے کہ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ کس چیز کی؟ قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اب اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے قسم کھائی، اور ہم بھی قسم کھاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ قسم کے بغیر مانتے ہی نہیں، یقین نہیں کرتے۔ تو ہم جو قسم کھاتے ہیں سامنے والوں کو یقین دلانے کے لیے، سامنے والوں کو بولیے یقین دلانے کے لیے، اللہ نے بھی انسان کو اور اپنے بندوں کو یقین دلانے کے لیے یہ قسم کھائی۔ والقرآن الحکیم، میں قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ انک، ان کے معنی ہوتا ہے بے شک، ان کے معنی، اور کا کے معنی آپ۔ ہم جو بچے کو بولتے ہیں نا تو، اپنے ہم عمر کو بولتے تم، اور بڑوں کو کیا بولتے؟ آپ۔ یہ سب کا ترجمہ ہے، کا، انک، یہ کا ترجمہ، آپ، بے شک آپ۔ اور یہ کا لفظ
यानी आप का लफ्ज़ या तू या तुम का लफ्ज़ कब बोला जाता है, किसको बोला जाता है? जो गया या आ रहे हैं या सामने है? बोलिए, तुम कहाँ गए थे, आप कहाँ से आ रहे हैं? ये हम जो गुजरे उसको बोलते हैं, जो आ रहे हैं उसको बोलते हैं, जो सामने है, जो सामने है, ये लफ्ज़ सामने वालों को बोला जाता है। इन्नका, बेशक आप, मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह यासीन को दुनिया बनाने से 1000 साल तिलावत फरमाई और अपने नबी को, अपने हबीब को बोला यासीन वल कुरानिल हकीम, मैं कुरान हकीम की कसम खा के कह रहा हूँ, इन्नका, बेशक आप, ल मिनल मुरसलीन, कि आप मेरे नबी हैं। इस बात पर गौर कीजिए, दुनिया बनाने से 1000 साल पहले अल्लाह फरमाते कि बेशक आप मेरे नबी हैं। जब अल्लाह ने फरमाया बेशक आप, तो हमारे नबी आ रहे हैं या सामने थे? बोलिए ना, ये लफ्ज़ का तकाजा, तर्जमा कि अल्लाह ने इस जुमले को उस वक्त फरमाए जब हबीब सामने हैं। इन्नका, बेशक आप मेरे नबी हैं। फिर हमारे नबी को कब नबूवत मिली थी? नहीं समझ में आ रहा। हम क्या कहते हैं, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। और सहाबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल करते हैं कि आपको नबूवत कब मिली? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे नबी बनाया गया जिस वक्त हजरत आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। आप नहीं समझे, पानी, मिट्टी इकट्ठा किया गया, उसमें पानी डाला गया, एक तरफ मिट्टी एक तरफ पानी, फिर दोनों पानी को मिट्टी में डाला गया, फिर उसको क्या बनाया गया, यानी मिट्टी पानी से मिलाकर उसको गोद कर गाढ़ा बनाया गया। फिर उससे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला बनाया गया, फिर उसको सुखाया गया। उसके बाद फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में रूह फूके, तो फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान के रूप में, जानदार के रूप में वजूद में आए। उसके बाद एक के बाद दीगर नबी आते रहे, नबी आते रहे, नबी आते रहे, नबी आते रहे। फिर आखिर में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। उससे तकरीबन 1500 साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। और फिर तकरीबन 570 कमोबेश साल बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और फिर 40 साल में नबूवत मिली। ये हमारे सोच है। हमारे नबी फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी मिट्टी और पानी में है, ना मिट्टी पानी से मिलाया गया था, ना उसको गोंद के गारा बनाया गया था, ना उसको पुतला बनाया गया था, ना उसको सुखाया गया था, ना उस पर रूह फूका गया था। उससे पहले हमें नबूवत मिली है। उससे पहले नबूवत मिली है जो हकीकी नबूवत है। और अमली तौर पर जो हमारे सामने दुनिया में हमारे नबी को जो नबूवत मिली, जिसको हमें मालूम है, वो 40 साल जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा, जबल नूर,
اس کو غار ہرا بھی بولتے ہیں اور جبل نور بھی بولتے ہیں۔ وہاں جب تشریف فرما تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اقرا، اے نبی آپ پڑھیے، اقرا پڑھیے، اقرا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ مجھے پڑھنا لکھنا کچھ نہیں آتا۔ تو جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کو بازو میں لیے اور ایک دبائے اور پھر فرمائے، پھر عرض کیا، اقرا کتاب، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جبرائیل علیہ السلام پڑھنا شروع کیے، ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے پڑھنا شروع کیے۔ اس دن نبوت ملی۔ اقرا پڑھو، مطلب نبی تم اپنی امت کو بتاؤ اقرا پڑھو، قرآن پڑھو، تو تم کو معلوم ہوگا، اور تم کو معلومات ہوگی تو منزل میں پہنچنا آسان ہوگا۔ اگر تم نہیں پڑھو گے، اگر تم معلومات نہیں لوگے، اگر تم علم حاصل نہیں کرو گے، پھر تم کو منزل کا پتہ نہیں چلے گا۔ پھر منزل نہیں تو، اگر معلوم نہیں تو پھر منزل کہاں؟ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام آپ نے کبھی نہیں سنے، تو اس گاؤں میں آپ کیسے پہنچیں؟ ہے نا بھائی، ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں دیکھنے کی یہ چیز ہے، اچھا اب ایک معلوم، جانے کا راستہ ایسا ایسا ہے، یہ بھی ایک معلوم، اس گاؤں کا علم بھی ہوا، راستے کا معلومات بھی ہوئی، اب وہ چلنا شروع کیا تو منزل کو پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اقرا پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو جانو۔ اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجے؟ مقصد کیا ہے معلوم کرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے حیات اور موت عطا فرمائی، اس حیات اور موت کے بیچ کا جو وقت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے دی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اچھے عمل لے کر میرے طرف لوٹتے ہو۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، کہ میں انسان کو مرد و عورت کے ناپاک خون سے، ناپاک پانی سے بنایا، مقصد امتحان ہے۔ اور ایک تیسری جگہ اللہ فرماتے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں تم کو یوں ہی بنایا؟ کیا تم کو میرے طرف لوٹنا نہیں؟ مطلب لوٹنا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو صرف عبادت کے لیے بنایا۔ مقصد تخلیق انسان، انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے یہ بات رکھی اِنِّ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، انسان کو خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا کہ آپ اس انسان کو اس لیے بنائیں گے کہ وہ دنیا میں جا کے فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے، پتہ نہیں کیا 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 کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے جو معلوم ہو تم کو معلوم نہیں، کہ وہ سارے حالت میں ہوں گے، بیوی بھی، بچے بھی، کاروبار بھی، تجارت بھی، کھیتی بھی، زمین بھی، کاج کام، ہر کچھ ہوگا، لیکن جب اس کے سامنے اللہ اکبر کی آواز آئے گی سب کو چھوڑ کے وہ مسجد کو جائے گا،
उनकी सारी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक होगी, मैं जो चाहूँगा वो करेगा और फिर मैं उसको कामयाबी दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में उसको मैं चैन और सुकून की ज़िंदगी दूंगा और आखिरत में मैं उसको जन्नत दूंगा। जन्नत की नेमतें उनके लिए होंगी। वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तदऊन, कि तुम्हारे लिए जन्नत है, जन्नत में जो तुम चाहोगे तुमको वो भी मिलेंगे और जो तुम सोचोगे तुमको वो भी मिलेंगे। अल्लाह ने हमें एक मकसद के लिए बनाया, उस मकसद तक पहुंचने के लिए एक मालूमात चाहिए। क्या चाहिए? और वही मालूमात हमें मिलेगी कुरान से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से गए और फरमाए मैं जा रहा हूं, मैं कुरान और अपनी जिंदगी को छोड़ के जा रहा हूं। कुरान के अहकामात को मान लेना, मेरी जिंदगी को अपना लेना, तो फिर तुमसे मेरी मैदान महशर में मुलाकात होगी और अल्लाह तुमको उस दिन कामयाबी अता करेंगे। और अगर तुमने कुरान से एराज किया और अगर तुमने कुरान से मुंह मोड़ लिए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा वकज़ालिक अल-यौम तुनसा। जो कुरान से एराज करेगा उसको दुनिया में एक जिंदगी मिलेगी, तंग जिंदगी। कैसी जिंदगी? बोलिए। तंग जिंदगी मिलेगी। आप पूछ रहे वो जिंदगी कैसी होती है? उलमा ने मिसाल दे देकर फरमाया कि उस आदमी के सामने दस्तरखान पर दुनिया की हर नेमतें मौजूद होंगी मगर उसके पास भूख नहीं। फिर ये नियामतें किस काम का है? उनके घर में राहत और आराम के लिए हर शय मौजूद होगी मगर आंख में नींद नहीं होगी। और हम इस जमाने के एतबार से एक मिसाल देते हैं। एक आदमी का 10 बेटा है। कितने? हर एक के पास कम से कम कितने मोबाइल है? आज के ज़माने में हर एक के पास कम से कम 3-4 भी है, लेकिन कम से कम 2। और हर मोबाइल में सिम कम से कम आई बस समझ में। बेटे कितने? 10। उनके पास मोबाइल कितने? 20। उन मोबाइल में नंबरत कितने? ये 40 नंबर किसके पास? अब्बा के पास। वो कहता है कि मेरा 10 बेटा है, 10 बेटे के पास 20 मोबाइल है, हर एक के पास 4-4 नंबर है। मैं कब भी किसी भी वक्त कोई भी मुसीबत आएगी मैं अपने बेटों को किसी भी नंबर में कॉल करूंगा, वो आके मदद करेगा। नतीजा क्या? जब वो बाप मुसीबत में गिरता है और अपने बेटों को फोन लगाता है, इधर देखिए, हर एक बच्चा फोन को दिखता है मगर उठाता नहीं है, रिसीव नहीं करता। क्या कहता हो? ये तो बुढ़े का फोन है। क्या बोलते हैं? ये तो बुढ़े का फोन है। वो कट करता है और मोबाइल को फेंकता है। कोई रिसीव नहीं करता, कोई रिसीव नहीं करता। अब जवाब दीजिए, बेटे कितने? मोबाइल कितने?
नंबर रिसीव करने वाला कोई नहीं है। इसी का नाम तंग जिंदगी। दस्तरखान में खाने पीने की हर शय मगर भूख नहीं, आराम और राहत की हर चीजें मगर नींद नहीं। बेटा 10 है, मोबाइल 20 है, नंबर 40 है, मगर कोई रिसीव करने वाला मतलब कोई सुनने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। ये है तंग जिंदगी। जब उस इंसान की ऐसी हालत आएगी ना, अब कहेगा ऐ अल्लाह, घर में कोई सुनता नहीं, बाहर कोई मददगार नहीं, बच्चे फोन उठाते नहीं, पेट में भूख नहीं, आंख में नींद नहीं, बेचैनी की जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, अब तो उठा ले। फिर वो दुनिया से चल बसता है। लोग उसको कब्र में डाल के आ जाता है। उनका सोच ये था कि बस खबर में जाऊंगा, मिट्टी हो जाऊंगा, हड्डी बोसीदा हो जाएगी, मेरी छुट्टी हो जाएगी। अल्लाह फरमाते हैं वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि क़यामत के दिन मैं तुझे अंधा बनाकर उठाऊंगा। वो कहेगा, कौन? वो बंदा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ अल्लाह आप मुझे अंधा बना करके उठाए। मैं तो दुनिया में खूब देखता था, हम तो गांव गांव खूब घूमते थे, मुझे हर रास्ता पता है, हर गांव पता है, हर जगह पता है। दुनिया में मेरे 2 आंखें थी, बिनाई थी, दुनिया में मैं खूब देखता था। आज वो आंख कहाँ चली गई? आज वो बिनाई कहाँ चली गई? आज मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवाब देंगे, कज़ालिका अततका आयातुना, तेरे सामने मेरी आयत आई थी, मतलब कुरान आया था, नबी की जिंदगी आई थी, शरीयत आई थी, दीन आया था, और मैंने तुझे आंख दी थी। क्यों? कि तू कुरान को देखता, तू कुरान को पढ़ता, तू कुरान को समझता, समझकर कुरान की जिंदगी को अपनाता, तो मैं तेरे लिए ऐलान करता जन्नत की, तू जन्नत में ऐश की जिंदगी गुजारता। लेकिन तूने कुरान को नहीं देखा, तूने कुरान को नहीं सीखा, तूने कुरान को नहीं पढ़ा, तूने कुरान को नहीं समझा, तूने मर्जी की जिंदगी गुजार के आया। आज तेरे लिए कोई आंख भी नहीं, आज तेरे लिए कोई नामत भी नहीं, आज तेरा ठिकाना तो जहन्नम है। जहन्नम में क्या क्या है? आग है। आग ठंडा या गरम है? अरे ठंडा या गरम? आग ठंडा या गरम? हुसैन ठंडा या गरम? अब इनके पास तो आंख नहीं है, कैसे पता? कह रहे कि आग यूं ही पता चल जाता है। मेरे बात समझ रहे? अल्लाह कहेगा तुझे आंख की क्या जरूरत है? जहन्नम चाह, तुझे यूं ही पता चल जाएगा। आग को समझने के लिए आंख की जरूरत नहीं है। अब दुनिया में मैंने जिसको आंख दी थी, अगर वो नाफरमान है, आज उसको आंख नहीं दूंगा, और जिसको नहीं दी थी अगर नाफरमान है, उसको भी आज नहीं दूंगा। क्योंकि जरूरत क्यों? अगर हमने उसको दुनिया में आंख दी थी और वो फर्मा बरदा बन के आए, तो उसको आज भी आंख दूंगा। और जिसको मैंने दुनिया में आंख ना दी थी, अगर वो भी फर्मा बरदा बन के आएगा, तो मैं उसको भी आंख दूंगा। वो जन्नत की हर नेमत देखेंगे। क्यों? कि दुनिया में किसी को आंख मिले चाहे ना मिले, दुनिया की जिंदगी तो गुजरेगी, और जन्नत में आंख नहीं तो फिर जन्नत का मतलब क्या है? जो कुरान से राज करेगा,
جو قرآن سے منہ موڑے گا، چاہے وہ آنکھ والا ہو یا بغیر آنکھ والا ہو، سب کا حشر ایک ہے۔ اعراض کیا تو پھر دنیا کے جانے کے بعد آخرت میں کوئی آنکھ نہیں، ٹھکانہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اور اگر اللہ کے حکم پر چلا، نبی کی مرضی پر چلے، چاہے وہ آنکھ والا ہو یا آنکھ نہ ہو، کل قیامت کے دن جنت میں اس کو بھیجا جائے گا، ان کو آنکھ بھی ملے گی، ان کو سارے نعمتیں ملے گی، ہر نعمت کو دیکھے گا، اور جنت کا جو مزہ ہے، جنت کا جو ذائقہ ہے، جنت کی جو زندگی آرام عیش کو، پھر وہ سب چیز کو وہ احساس کریں گا، معلوم کرے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کیا؟ اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کی ہے۔ پڑھو گے تو مجھے جانو گے، مجھے جانو گے تو پھر مجھے پاؤ گے۔ اور یہ قرآن میں نے دی، میں کون ہوں، رسول کون ہے، آخرت کیا ہے، حشر کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، بیاہ کیا ہے، شادی کیا ہے، موت کیا ہے، حیات کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اچھی کیا چیز ہے، بری کیا چیز ہے، ہر چیز کی معلومات میں نے قرآن میں دی ہے۔ تم قرآن کو پڑھو، تم قرآن کو جانو، اچھا راہ اختیار کرو۔ میں نے قرآن میں قصے دیے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، ساتھ میں فرعون کا بھی قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، ساتھ میں نمرود کا بھی قصہ ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے واقعہ ہے، ساتھ میں مشرک اور کفر کے بھی واقعہ ہے۔ صحابی کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کفر کے لیے، مشرک کے لیے، ابو لہب کے لیے آیات اتری، تبت یدا ابی لہب وتب۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو مانا، میں نے ان کے لیے خوشخبری بھیجی۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کیا، میں نے ان کے لیے وعید بھیجی، عذاب کا خبر بھیجی۔ آج ہم حیران ہیں، آج ہم پریشان ہیں، آج ہماری حالت کیسی کیسی گزر رہی ہیں، وجہ کچھ نہیں، واحد کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل، بہتر، سب سے اعلیٰ شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور بولیے سیکھے اور سکھائے۔ الحمدللہ آج ہم اسی نسبت پر جمع ہیں۔ ہم سوچے تھے ایک ہی سال ہو، آپ کہتے کہ نہیں 1.5 سال پہلا پائے تھے۔ دل میں یہ بات آئی اور میں سوچ رہا تھا، ہمارا امیر صاحب بھی بار بار مجھے فون کیا کرتے تھے، میں تو نہیں کرتا تھا، وہ ہماری غلطی بھی ہے اور موقع کی بھی بات ہے، موقع کچھ نہیں، موقع تو ہوتا ہی ہے، اور وہی کہاں ہیں اور کس حال میں ہے، کیا چل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں بھی پھر آئیے۔ تو اتفاق سے کچھ دن پہلے ہم نے فون کی کہ ہم آنا چاہتے ہیں، زیادہ نہیں، 1 ہفتہ 7 دن کے لیے۔ تو خیر ایک اجتماع اور دیگر مشاغل کی وجہ سے تھوڑا 1 دن تاخیر بھی ہو گیا، لیکن ہمارے عامر صاحب کی ایک محنت اور ان کی کوشش اور فکر ہے، کل پہنچے میرے پاس کہ ہمارے کلاس ہونا چاہیے۔ میں بھی تیار تھا اسی کام کے لیے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جس نیت سے آپ کے یہاں پہنچے، اللہ نے ہمیں اور آپ کو ملائے۔ آج اس نسبت پر ہم دعا کریں کہ کل جنت میں بھی اللہ ہم سب کو ملائے، اور اس کے لیے یہ قرآن ضروری ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کتاب کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔
पानी के बगैर हम अपने प्यास को बुझा सकते हैं, खाने के बगैर हम अपने भूख को मिटा सकते हैं, लेकिन कुरान के बगैर हमें हिदायत नहीं मिल सकती है। और हिदायत के बगैर अगर किसी को मौत आ गई फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। पानी के बगैर किसी को मौत आ गई कोई बात नहीं, खाने के बगैर कोई मर गया ईमान के साथ कामयाब हो गया। एक आदमी को पानी भी मिला, खाना भी मिला, मगर उसको कुरान नहीं मिला, हिदायत नहीं मिली, ईमान नहीं मिला, क्या वो कामयाब या नाकाम? वो नाकाम है। अभी रमज़ान बिल्कुल सामने है, ये महीना रजब का है, बाद शाबान है, फिर रमज़ान बहुत करीब है। रमज़ान में रोज़े की हालत में हो और हाथ में कुरान ना हो, जैसे कि सालन में हर कुछ है मगर नमक ना हो, क्या कोई खाएगा? कुरान में रमज़ान में लोग कुरान पढ़ते हैं, हम देखते हैं, तकलीफ़ होती है। इंशाअल्लाह आज से हम एक मेहनत शुरू करेंगे, मंगल तक मुख्तसर अंदाज में 2-3 दिन में मैं आपको कायदा मुकम्मल समझाऊंगा और फिर इंशाअल्लाह आखिर में 1-2-4 दिन में आपको कुरान भी पढ़ाऊंगा। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह एक बार कुरान की सारे कायदे हमारे सामने फिर आ जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह कुरान के साथ और एक बार हम मेहनत कोशिश करके हम कुरान से फिर निस्बत को जोड़ेंगे और मजबूत करेंगे और रमज़ान में, इस रमज़ान में हम खूब कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आज सुबह मैं जयसिंहपुर पे क्लास में था तो एक आदमी आके कहने लगे, मौलाना तब आप आए थे, हम बैठे थे, लेकिन अभी बात और ज़्यादा बात समझ में आ रही और मुझे उम्मीद है कि आप भी समझेंगे और मैं उसको बहुत खोल खोल के बयान करूँ। इसलिए कुरान सीखना ज़रूरी है, कुरान सीखना आसान भी है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान, कि मैंने कुरान को आसान कर दिया। क्यों? कि कुरान अगर आसान नहीं फिर बंदों को हिदायत किस तरह मिलेगी? हिदायत पाने के लिए कुरान होना और कुरान को अपनाने के लिए कुरान आसान हो तो आसान है। इसलिए इंशाअल्लाह हम 1-2 बार फिर कोशिश, फिर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको समझाऊं कुरान कितना आसान है। ऐसे तो ये मिसालें हम मुअल्लिम को देते हैं, आप भी माशाल्लाह कुरान के साथ है, मुझे उम्मीद है ये बात आप समझेंगे। एक मस्जिद बनाना है तो सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है? कहाँ फाउंडेशन करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ होना वो जगह है। जगह तैयार, जगह तैयार। अब मस्जिद बनाना तो 5 चीज़ों का होना चाहिए। नंबर 1 ईंट, नंबर 2 सीमेंट, नंबर 3 बालू रेती, नंबर 4 क्या बोलते सरिया लोहा, नंबर 5 पत्थर के टुकड़े जल्ली। कितने चीज़? और क्या होना? और कुछ होना क्या? बोलते क्यों नहीं? और कुछ होना क्या? ये 5 चीज़ छोड़कर बिल्डिंग बनाने का और कुछ होना? बोलिए ना। अरे बोलते क्यों नहीं? पानी होना ना, पानी के बगैर नहीं होता क्या? गन्ने का रस से पानी होना, लेकिन असल जो चीज़ है वो 5 है। अब कोई भी बिल्डिंग तोड़ेंगे तो वही 5 ही चीज़ निकलेगी, ईंट, सीमेंट, बालू, खड़ी और स्टील। पानी निकलेगा क्या? असल मटेरियल्स 5 है।
जगह तैयार, उसके बाद हमें 5 चीजें जमा करना। कितने चीज? 5 चीज। और 5 चीज जमा हो जाए तो फिर 3 काम करना। कितने काम करना? नंबर 1 फाउंडेशन, भीत, पिलर। नंबर 2 दीवार, और नंबर 3 छत। नंबर 1 जगह खरीदना। जगह रेडी तो कितने चीज जमा करना? 5 चीज जमा करना। और 5 चीज जमा हो जाए तो उसके जरिए कितने काम? 3 काम, फाउंडेशन, दीवार और छत। और इतना हो जाए तो क्या उस मस्जिद में हम नमाज पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं? नहीं। क्या करना? क्या करना? फिनिशिंग करना। क्या करना? फिनिशिंग। खिड़की होना, दरवाज़ा होना, टाइल्स होना, और कलर होना, फैन होना, लाइट होना, घड़ी होना, और पता नहीं क्या क्या होना। इसको एक जुमले में क्या बोलेंगे? फिनिशिंग। एक जुमले में क्या बोलेंगे? फिनिशिंग। और फिनिशिंग हो जाए तो फिर ओपनिंग। क्या? नमाज शुरू, मकान में रहना शुरू। तो कुरान को पढ़ने के लिए भी 4 काम करना है। कुरान को पढ़ने के लिए भी 4 काम करना है। नंबर 1 जगह खरीदना। आप बोलेंगे वो कैसा? अरबी ज़बान के 29 हरूफ है। समझ लीजिए, अरबी ज़बान के 29 हरूफ है। पूरे कुरान पाक में आयत तो 6666 है, और एक एक आयत में कितने हरूफ है? बहुत है। और पूरे कुरान पाक के हरूफ को गिनेंगे तो कितने? 100, 1000 या लाखों। बोलते क्यों नहीं? अरे बोलते क्यों नहीं? पूरे कुरान में लाखों, सिर्फ 29 हरूफ है। 29 हरूफ को हम पहचान लिए, गोया कि हमने जगह खरीद ली। अरबी ज़बान में 29 हरूफ के 2 शक्लें हैं। कितने शक्लें? एक शक्ल का नाम मुफरादात, एक शक्ल का नाम मुफरादात, और एक शक्ल का नाम मुरक्कबात। एक शक्ल का नाम मुरक्कबात। मुफरादात अलग अलग हरूफ को कहते हैं, जैसे अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खो वगैरह वगैरह। और मुरक्कबात मिले हुए हरूफ को कहते हैं, जो हम कुरान में देखते हैं। हरूफ 29, चाहे वो हालत मुफरादात में हो या मुरक्कबात की शक्ल में हो, सबका चेहरा एक है, सबकी शक्ल एक है, सबकी सूरत एक है। अगर मुफरद में है वो थोड़ा दिखने में अलग है, मुरक्कबात में देखने में अलग है, लेकिन जो असल सूरत और शक्ल है वो सबका एक है। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि 29 हरूफ के असल शक्ल कौन सा है, तो वो हरूफ चाहे हालत मुफरदात में हो या मुरक्कबात में हो, हम बाआसानी उसको पहचान लेंगे। तो कुरान को सीखने के लिए भी 4 काम करना है। नंबर 1, अरबी 29 हरूफ के मुफरद मुरक्कब शक्लों को मखारिज के साथ जानना और सीखना। नई बात समझ में आ रही? अरबी 29 हरूफ के मुफरद मुरक्कब शक्लों को मखारिज के साथ जानना, पहचानना और उसको पढ़ना। पहचानना भी, उसको पढ़ना भी मखराज के साथ।
कोई अगर कुरान में जाकर कोई भी आयत उठा लेते हैं और उसमें कितने हुरूफ है अगर वो मखरिज के साथ अगर वो बता देते हैं, इतनी हिम्मत और इतने इस्तेदाद अगर उसको हासिल हो गया, गोया कि उसने क्या खरीद ली? जगह खरीद ली। उसके बाद 2 नंबर काम क्या? जगह खरीदने के बाद क्या करना? 5 चीजें जमा करना। वो 5 चीज क्या है? नंबर 1 ज़बर, नंबर 2 ज़ेर, नंबर 3 पेश, नंबर 3 जज़्म, नंबर 3 तशदीद। ज़बर का काम क्या है? ज़ेर का काम क्या है? पेश का काम क्या है? जज़्म का काम क्या है? और तशदीद का काम क्या है? मतलब 29 हुरूफ पर ज़बर आए तो हम क्या आवाज़ निकालेंगे, ज़ेर आए तो क्या आवाज़ निकलेगी, पेश हो तो कौन सी आवाज़ निकलेगी, जज़म है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तशदीद हो तो उसको कैसे पढ़ेंगे। अगर ये 5 बात आपको मालूम हो गया, गोया कि अपने 5 मटेरियल्स बोलिए जमा कर लिए। अब आप क्या करेंगे? बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। क्या करेंगे? बिल्डिंग का काम शुरू करेंगे। और बिल्डिंग के 3 काम हैं, फाउंडेशन यानी भीत, दीवार और छत। यहां भी आपको 3 चीज जानना है। पूरे कुरान पाक में मैं आपको बताया था, याद कीजिए, पूरे कुरान पाक में सिर्फ 3 तलफ़ुज़ है। ज़बर ज़ेर पेश है तो जल्दी पढ़ेंगे, हुरूफ लीन है तो जल्दी पढ़ेंगे, हुरूफ माद्दा है तो खींच कर पढ़ेंगे, जज़म तशदीद है तो बोलिए मिलाकर पढ़ेंगे। 3 चीज है कुरान में, 3 तरह के तलफ़ुज़ है, या तो खींचना, या तो मिलाना, या तो जल्दी पढ़ना। नंबर 1 खींचना, नंबर 2 मिलाना, नंबर 3 जल्दी पढ़ना। नंबर 1 खींचना, नंबर 2 मिलाना, नंबर 3। पूरे कुरान पाक में 3 ही तलफ़ुज़ है, या तो खींचना, या तो मिलाना, या जल्दी पढ़ना। सूरह फातिहा की पहली आयत अल मिलाकर, हम बोलिए मिलाकर, दू जल्दी, लिल मिलाकर, ला ही जल्दी, रब मिलाकर, बिल मिलाकर, आ खींचकर, ला मीन। पूरे कुरान पे 3 ही तलफ़ुज़ है, या तो खींचना, या तो मिलाना, या जल्दी पढ़ना। ये 3 बात जिसको मालूम हो गई, उसका पिलर, दीवार और छत हो गए, बिल्डिंग तैयार। नंबर 4 फिनिशिंग, वो है गुन्ना। आइंदा कल मैं ज़मीन खरीदूंगा, यानी 29 हुरूफ को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आइंदा कल जुमेरात है, कल जुमेरात है, और फिर जुमा को मैं आपके लिए मटेरियल्स रेडी करूंगा, ठीक है। और फिर शनिवार को मैं फाउंडेशन, दीवार और छत बनाऊंगा, फिनिशिंग। इतवार को मैं कुरान शुरू कराऊंगा और तभी मैं फिनिशिंग करूंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप बोलेंगे कौन जिम्मेदारी दी है हमें? अब हम शादी करने को जाते क्या बोलते हो? आजकल के बच्चे नहीं बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, इतना लंबा बोलते क्या बोलते? अब जिसने हूं कह दिया, अब शादी के बाद मर्द ने जिस औरत को, जिस बीबी को हाँ कह के कबूल कर ली,
अब इसको साथ लेके कौन जाएगा? जिसने हूँ बोला। और कपड़ा खरीद के कौन देगा? अरे बोलो ना भाई, जिसने हूँ बोला। और घर बना के कौन देगा? जो हूँ बोला। रोटी कौन देगा? वो जिसने हूँ बोला। अब ये कहते कि इमाम साहब इतनी सारी बात आप बोले नहीं। कोई इमाम साहब बोलते कि देख ले, हूँ देने से पहले रोटी भी खिलाना, कपड़ा भी देना, मकान भी देना। वो तो मुझे मालूम था, सोच के हम हूँ बोलते। फिर पूछते कि ये जिम्मेदारी कहाँ से आ गई? हाँ, हूँ कहने से सारी जिम्मेदारी है। जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज की हिफाजत करे, यानी 5 वक्त नमाज पढ़े। जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पर ज़रूरी है साल में 1 महीना रोज़ा रखे। अभी आ रहे 2 महीने बाद, गर्मी भी आ रही, अंगूर भी तैयार, टेंशन बिल्कुल नहीं। अरे अंगूर भी तैयार हो रहे हैं ना, रमज़ान भी आ रहे, धूप भी है, टेंशन क्या है? जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पैसा है तो ज़कात दो, पैसा है तो हज करो। ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा लोग करते हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो लफ्ज़ी तर्जमा है। अमली तर्जमा नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो, अच्छी बातें करो, झूठ ना बोलो, फ्रॉड ना करो, धोखा ना दो, मिलावट ना करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का अमली तर्जमा है। और एक हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका तर्जमा कि जिस तरह तुम ईमान लाए, लोगों को ईमान की तरफ दावत दो। जिस तरह तुम नमाज पढ़ते, लोगों को नमाज की तरफ बुलाओ। जिस तरह तुम ज़कात देते, इस तरह दूसरों को भी ज़कात की तरगीब दो, मसला समझाओ। जिस तरह तुम हज करते हो, किए हो, उस तरह दूसरों को भी हज के कायदा और उनके तरीका समझाओ। ये मुहम्मद रसूलुल्लाह का तक़ाज़ा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिर नबी तक जितने आए, सबका तरीका अल्लाह के तरफ से है। और सबको जो काम मिला अहम, वो बंदू को अल्लाह से जोड़ना, इसी का नाम दावत इल्लल्लाह है। कोई कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसी के ज़िम्मे में दावत इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि हम कुरान की निस्बत पर आ गए, कुरान की बात सुनकर आ गए। ये तकाजा था ला इलाहा इल्लल्लाह का। जिसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी के ज़िम्मे में कुरान सीखो, ईमान सीखो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, उसी के ज़िम्मे में है। और जो ये सारे काम करते हैं, उसी के ज़िम्मे में है कि सबको इन बातों की दावत दो। अल्लाह आज हमें कुरान की निस्बत पर जमा फरमाए। हम मर्द भी है, वहाँ मस्तूरात भी है। हम सब से गुजारिश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 3, 4, 5 आदमी की हरकत थी कल, माशाल्लाह इतने मर्द और इतनी मस्तूरात जमा हो गई। एक हरकत आपको देना है, आज से लेकर कल 3 बजे तक। हमारे माँ बहनों को भी एक हरकत देना। उनको पता है कि पिछले क्लास में कौन कौन आई थी, आपको भी पता था कौन कौन आए थे, और यहाँ कौन कौन है या कौन कौन नहीं है, मालूम है ना। उन सब को अभी से लेकर कल 3 बजे तक दावत देंगे, सबको बुलाएंगे, सबको बोलना घर में पिछले साल का जो कायदा है वो कायदा लेते आना, ठीक है ना। फिर मैं इंशाल्लाह कायदा समझाऊंगा, और कायदा हो जाए तो मेरी बहुत दिन की ख्वाहिश थी कि जिस तरह ये नूरानी कायदा कलर कोडेड में है, कहाँ खींचना कहाँ गुनना, कुरान के भी 1-2 पारे तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले जब मैं शोलापुर में था तो पहला पारा तैयार, और 1 महीना पहले आखिरी पारा यानी अम्मा पारा, ये 2 पारे तैयार है। इंशाल्लाह वो भी पारे आपको मिलेंगे, घर के पारे भी, ये भी पारे, कि उसमें हमने बताया कहाँ खींचना, कहाँ गुनना, कहाँ क्या क्या करना।
बस एक तरफ और तलब के साथ हम खुद भी पहुँचेंगे, दूसरों को भी पहुँचेंगे, और इंशाअल्लाह हर रोज़ हम 2-2 घंटे की मेहनत करेंगे। अल्लाह करे अल्लाह हमारी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, और अल्लाह हम सबको, बल्कि हमारे गांव वाले सब फर्द, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, अल्लाह सबको कुरान की दौलत और कुरान की ज़िंदगी अता फरमाए, और हमारी इस मेहनत को ज़रिया बनाकर अल्लाह इस काम को पूरे दुनिया में फैलाए कि हर इंसान कुरान पढ़ने वाला हो, हर इंसान नमाज पढ़ने वाला हो, हर इंसान दीन पर चलने वाला हो, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें बनाया है। इसके लिए हमें खुद को मेहनत करना है, दूसरों को अच्छी बातों की तरफ दावत भी देना है, करेंगे। और एक काम करना है, वो है दुआ, साथ साथ दुआ भी करना है। अगर डॉक्टर यानी मतलब कम डिग्री वाला अगर डॉक्टर हो, उसकी दवाई खाओ तो दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा शाफी और अल्लाहुम्मा काफ़ी। और एक डॉक्टर है, उनके पास दुनिया की सारे डिग्रियां हैं, उनकी दवा खाने में दुआ होना नहीं होना नहीं, उनके पास तो डिग्री है, अजी डिग्री से कुछ नहीं होता। दवाई अच्छी देते हैं, अजी दवाई से कुछ नहीं। अच्छे डॉक्टर के पास जाना भी है, अच्छी दवाई लाना भी है, लेकिन दवाई इस्तेमाल करते वक्त अल्लाह से बोलिए ना, दुआ भी मांगना है। हर मेहनत के पीछे अल्लाह के यहाँ अपनी मेहनत को कबूल कराने के लिए दुआ भी मांगना है। मांगेंगे अल्लाह के पास, मांगेंगे, सबको दावत देंगे, हम खुद पहुँचेंगे नंबर 1, नंबर 2 दूसरों को दावत देंगे, और हम अपने गांव वालों के लिए, आपके जो गांव कुरुंदवार है, इन सारे गांव वालों के लिए, अतरफ गांव वालों के लिए, बल्कि सारे दुनिया के लोगों के लिए हम हिदायत की दुआ करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। आइंदा कल इंशाल्लाह हम सब सारे 3 बजे पहुंचेंगे, और इंशाल्लाह बातरतीब हम अपने सारे दर्स शुरू करेंगे। ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।